अगर सारे लोग एक जैसा ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, या सारे लोग एक जैसा लैंडिंग पेज दिखा रहे हैं यूजर्स को, तो कोई फायदा नहीं है आपके ऐड रन करने का। अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले पता हो कि आपकी ऑडियंस क्या है। मैंने बताया कि आपको अपने बिजनेस के बारे में भी समझना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस क्या है। Good morning, everyone. I am Rajesh Singh from Digital Edge Institute. First of all, I would like to welcome you all on this Sunday for this webinar of Google Ads. We shall take the session ahead, and in today's session, we'll discuss about Google Ads and how we can set up Google Ad and what is the advantage of Google Ad. And before we proceed further, first I'd like to introduce Digital Institute and what we are doing in Digital Institute and how we can shape your career through the education that we are imparting in the Digital Institute. So Digital Edge Institute is a premier digital marketing institute dedicated to shaping future-ready professionals, renowned for its highest placement record. We offer comprehensive course designed to equip students with cutting-edge skills in digital marketing. Our expert faculty, industry-focused curriculum, and real industry exposure ensures unmatched training quality and practical learning. Talking about why Digital Edge, at Digital Edge, our digital marketing curriculum is meticulously crafted to align with global industry standards, ensuring top-tier education for our students. Our seasoned industry experts provide invaluable insights and mentorship guiding students towards success. With strong industry tie-ups, students gain real-world experience through internship, seamlessly bridging the gap between academia and the industry. Additionally, our dedicated placement cell work tirelessly to equip every student with the necessary tools and support to ensure employment opportunity that match their aspirations and skill sets. Talking about the advantage of Digital Institute, uh, what are the edge of the Digital is, why we are different from the other institutions. First is the global industry curriculum. Our curriculum is designed with the global industry standards and which offers very up-to-date education for aspiring professionals worldwide. So after going through these courses from Digital Edge, you can work in any corner of this world because every country has a different marketing strategy, different mindsets. And digital marketing is not just about working with some tools like Google Ads or SEO. It's all about doing the basic marketing research and designing a perfect strategy for the particular industry segment or the country or the geographical locations. So our courses are very much aligned with the industry, global industry requirements. Second, we have a very senior industry trainers with us. All the trainers in our program are from the industry. They have experience of more than 10 years working with multiple companies, working on multiple projects. So they have real world experience on solving problems because when you will enter the industry, you will find a lot of challenge, and it's very important how to encounter, how to solve those problems. So this can happen only with the senior people who have faced those challenges and solved the real challenges in the real life. You will get the live projects, all the programs that we are running. Uh, you will get a chance to work on the real projects. We have our own in-house company. We have our own projects. So you will get lots of projects, the real projects of the companies where you will face real challenges and you will learn how to solve those real world scenarios. And obviously, the real industry internship is the part of the program. So we'll give you an opportunity to work on the real projects and with the real companies. So you can learn practically what are the problems and how to gain first-hand experience, and like you will also learn how to connect with the industry people uh, in the industry. And last but not the least, we have a guaranteed placement support. So all our programs is supported by the guaranteed placement support. We have a dedicated placement cell who works tirelessly for all the students, and they ensure that every students get proper interview opportunity and get placed in the industry. Talking about the edge of the Digital Edge Institute,
The advantage. The first is the AI, artificial intelligence. You all have heard about the terminology AI kya hota hai and what is the AI. But generally, what we have perception that AI means chat GPT or creating some video or creating some content is just the AI. But in fact, AI is much more ahead of this. It is not limited to this much only, that you will create a content or you will just do some basic research or create some image or videos. AI is more used in the data analytics. Why I'm talking about data analytics? What is the use of data analytics in digital marketing? So I'll take with some small example. Suppose you are planning to launch a product. Take an example of shoe in India. So you have to first understand the market demand, the behavior of the market, because every market segment has a different behavior. And until unless you don't understand the specific market, you don't have a proper analysis of the particular industry or the market, you cannot design a proper campaign or you cannot design a proper marketing strategy. Uh, why I am talking this? Because in most of the institutions, or if I talk about the real common digital marketing concept in India, it is just like a people who are working with few tools and just doing things like setting up Google Ads, Meta Ads, or doing backlinks or SEO, or such kind of things. But this is not the limit. This is the very fundamental of digital marketing. Now the entire world has shifted to digital world. So the entire marketing has shifted to the digital marketing. Nowadays, if the company or the organization or any product is not on the digital world, or any person is not on the digital world, they are away from the real market. So understanding the digital industry, the market strategy is very important. And if I talk about comparing with the manual or the AI, the manual is far behind nowadays, and everything is taken over by the artificial intelligence. So in this program, we train our students in depth how to use AI and how to use AI to analyze data, to design a proper strategy, marketing strategy. And this gives you a boost in designing your perfect digital marketing campaigns. Now, as I talked, real industry internship, because most of the institutions provides the like dummy internships, but because we have in-house company and we are working with lots of companies, we are the Google Premier partner also, and have lots of projects. So you will learn on the practical projects, live projects with Digital Edge Institute. And now, how this program will help you. So here we'll talk about who are the people who will get benefited out of this program, and how you can take advantage of these programs, the courses with us. So like if you're a fresher or you are working in some other industry looking to change your domain, this is a perfect course platform for you. So here you can learn how to work with the digital marketing tools, digital marketing strategies, and you can get a job in the industry. You can start your fresh job, or you can shift to the digital marketing industry. And again, if you are a business owner and want to increase your business revenue, so this is a perfect program. Uh, like you may learn marketing strategy that can help you to attract more customers and increase sales. And obviously, we also suggest business owners, small business, specifically the startups and the small business owners, to learn digital marketing, because if they don't know digital marketing, or if they are not on the digital platform, uh, they are losing a lot of business for them. So it's very important to learn digital marketing for the business owners also. Why? First thing, if they hire someone, they have to invest at least 20 to 30,000 per month in paying salaries and other expenses for the employee. Apart from that, you don't have any command what your employee is doing. So it's very important to understand each and everything of the marketing, digital marketing, so that you will have a control on your marketing. You will have even you can if you increase your business, if you grow up and you have a team, even then you will have a knowledge that what your team is doing. You can have a command on your team. This is very important to learn digital marketing in present scenario. Again, if you are like a social media influencer, YouTuber, and you have created good content and you know how to create good content,
and you have created everything, but your followers or the revenue is not increasing. It's very important to understand how to increase the revenue or the followers. So in this program, the program is designed in such a way that will also teach you on the social media things and the YouTubes, and how to improve or increase your influencers and monetization opportunity also. And again, there is one more category which is growing up nowadays. They are the freelancers. So if you are a freelancer and you don't want to work in a like fixed structure, you want to travel, you want to enjoy your life, and simultaneously you want to earn for your life. So this is one growing segment in the industry, which is called a freelancer. So this program will also teach you how to grab opportunity, how to gain projects from the industry, and how to work on those projects. So apart from training you on the core skills of the digital marketing, will train you also on how to get projects and how to get like yourself ranking on the sites where you can get the projects. So this is one of the topic that we also cover in the entire course. And again, there's one more segment for the e-commerce business owners. This is very, very important and very vast topic. Uh, Nowadays, if I talk about from the business owner perspective or point of view, they understand, most of the people, they understand the e-commerce means the posting or listing product on the e-commerce platform like Amazon, Flipkart, or other Myntra sites. It's not limited to that. Taking the same example of the shoes, there may be thousands of sellers for the same shoes in the country, and it is not possible. If you are not on the top 10, you are not getting your audience, you are not getting sales. It's very important. Even if you talk about Amazon, Amazon has a similar like separate search engine optimization strategy, similar to the like Google, or it's like working like the Google. So if you talk about the ranking your product on Google, Amazon, you have to understand the e-commerce strategy, the SEO strategy of the e-commerce. So in this program, we'll cover entirely that how to rank your product, how to like improve your sales on the e-commerce platforms. So if you talk about this program, what we have designed with industry experts covers all the segment of the people, whether you're a fresher or looking for a job, or a business owner, or a YouTuber, social media influencer, freelancer, or e-commerce business owners. This program has got you covered. Yeah. So the advantage of the digital edge programs are like we conduct classes in a both the mode, like physical as well as the online classes. We have online classes where we train students live on the Google Meet or Zoom. We create a classroom-like experience where you interact with your trainers, you interact with your batchmates like the normal classroom. And the advantage, you don't have to relocate or go to your classes physically, which will save your time, which is very much precious, and money also. So the advantage with the online classes, like you get all the classes recordings also on your LMS, and we have a 24/7 LMS access where all the recordings are uploaded, all your notes, PPT, everything is uploaded, and you can uh, uh, revise on the LMS anytime if you're free. Now, the real tool training, we will give you training over more than 50 tools, which is required to work into the digital marketing industry. So all the real tools, because we are a company, so we have access of all the tools and the real tools. So you will get trained on all the tools. And obviously, the real industry trainers are there. I discussed it earlier also. And last but not least, the guaranteed placement support, that if you're looking for a job, this program includes guaranteed placement support. Our team will ensure that you will get an interview with the company, and will also ensure you get a good job in the industry. Thank you. So now moving ahead, if I talk about the digital marketing industry jobs opportunities, as per the Naukri data, it's around 1,60,030 jobs available in the digital marketing domain. Similarly, as per the LinkedIn, which is the 2024 data, around 38,000 plus jobs are available in the digital marketing. And talking about the salary structure, the highest LPA of the content and marketing manager are around 23 lakhs. For the digital marketing manager are 18.5, and for the SEO it's 16 lakhs. And this is
a very authentic data of the Ambition Box 2024. You can go and check the Ambition Box, which is again one of the most reputed website of analyzing markets trends. Now moving ahead, as I talked, we are the part of the TriInfo IT Services Private Limited, and TriInfo IT Services is a Google Premier partner, and it's a full-fledged IT company. So TriInfo Private Limited brings over 12 years of experience in delivering high-impact digital marketing solutions as a Google Premier partner. We help more than 7,000 clients globally and achieving 97% of client retention rate. Our comprehensive services includes SEO, local SEO, social media marketing, PPC management, performance marketing, content and email marketing, website development, Google Ads management, and online reputation management. With a focus on customized strategy that drives growth and ROI, we offer tailored solutions designed to meet your unique business goals and deliver measurable results for a long-term success. Talking about the advantage of TriInfo IT Services Private Limited, which is a parent organization of Digital Edge Institute. It's a 12 plus years experience. It's a more than 12-year-old organization, and we have worked with many clients through these years. We are Google Premier Partner Company. So we have gained a lot of experience with Google. And talking about the clients, we have more than 7,000 satisfied clients with 97% of client retention. So why 97%? Because our services are up to mark, and we are working very seriously with all the clients, and we provide solutions to these clients. So once the clients are on board, they don't want to leave us. Okay. And again, we have a multiple country presence. We have office in India and Noida, and we have office in USA in Chicago and in London in UK. So we have presence in 3 countries, and we have clients from multiple countries like India, US, UK, Canada, Germany, and many parts of the Europe also. So talking about experience, we have experience working with the multiple companies at the multiple locations, because every country has different requirement and different marketing strategy. So we have experience with working with lots of variations in the digital marketing industry. Now our services, talking about, as I described also, we have expertise in search engine optimization, social media marketing, local SEO, PPC management, Google Ads management, website development, performance marketing, content marketing, email marketing, and online reputation management. We have an in-house team of more than 70 people working with us, and we also provide opportunity to all our students to work on these projects, which we have in our company. So that's why I talked, we have like in-house company. So you will gain expertise on the projects and the different process of the digital marketing. Now, so it was about the Digital Edge Institute and the TriInfo IT Services. And if you have any query, if you want to discuss anything about the course or the services that we are providing, you can contact us on the given number. We'll also share on the chat box. I'll ask my team to share the contact details in the chat box so that you can contact us. Our number is 844-747-0220, or you can write to us at info@digitalinstitute.com. If you want to visit, we are present at B406 Itham, Sector 62, Noida. So this was about the course. Now, thank you for your patience and listening to me. Now I'll take ahead the session, and we'll start the session on the Google Ads. I'll like to invite our today's presenter, Mr. Sachin Chauhan. Sachin Chauhan has a lot of experience in the digital marketing world. He has more than 12 years of experience working with multiple projects, working on multiple projects, working with multiple companies, and he's also a senior trainer with Digital Edge Institute. So I'd like to invite Mr. Chauhan. So it's over to you, Sachinji, and just please take ahead the session. Thank you, Mr. Rajesh. Hi everyone, my name is Sachin Chauhan. I am a trainer at Digital Edge Institute. Today's masterclass is about Google Ads lead generation. So we start करते हैं. I'm sharing my screen. तो आज के हम मास्टर क्लास के अंदर क्या क्या कवर करेंगे टॉपिक्स. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज लीड जनरेशन क्या होता है, व्हाई लीड जनरेशन इज इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ लीड्स, कितने टाइप्स की लीड्स होती है, प्रोसेस ऑफ लीड जनरेशन,
क्या प्रोसेस होता है हमारा, हाउ टू डिजाइन एन इफेक्टिव लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज आप कैसे इफेक्टिव डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड लीड जनरेशन टेक्निक्स, और कौन कौन सी टेक्निक्स है जहाँ से हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट में हम जो बात करेंगे गूगल एड्स पे करेंगे। आपको प्रैक्टिकल कैंपेन सेटअप करके ही मैं दिखाऊंगा लीड जनरेशन कैंपेन हम कैसे सेटअप कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन होता क्या है यहाँ पर, लीड जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इंटरेस्ट इन अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड देन टर्निंग दैट इंटरेस्ट इनटू अ सेल। तो वो लीड्स क्या होता है, लीड्स होता है यूजर की इन्फॉर्मेशन। कि आपने देखा होगा कि आप जब भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका एक पर्पज होता है, मेन पर्पज है क्या आपका, ठीक है। तो आपकी एक वेबसाइट बनती है, वेबसाइट आपने क्रिएट किया तो उसका भी एक पर्पज होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका मेन पर्पज क्या है, लीड जनरेट करना है, या आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, बेचना है इसको। तो लीड्स आप किसको बोलेंगे, लीड्स हम बोलते हैं यूजर्स की इन्फॉर्मेशन को। कि अगर कोई मान लीजिए मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की वेबसाइट है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर एक इंक्वायरी फॉर्म लगा दूंगा जिसमें यूजर कोई भी विजिट कर सकता है, वहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अपना डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल कर सकता है। तो मेरे पास जो डिटेल्स आ रही है उसको मैं लीड्स बोलूंगा, ठीक है। तो कोई भी यूजर आपकी जो वेबसाइट है, किसी भी टाइप की वेबसाइट हो सकती है, उस पर कुछ भी एक इंटरेस्ट शो कर रहा है यहाँ पर, वो अपना मोबाइल नंबर देकर जा रहा है, अपना ईमेल आईडी वहाँ पर छोड़ कर जा रहा है, तो कुछ भी एक इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो यहाँ पर लीड्स है, ठीक है। तो लीड्स भी अगर हम टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन की बात करें तो अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे इनबाउंड लीड जनरेशन होती है, आउटबाउंड लीड जनरेशन होती है, रेफरल लीड जनरेशन होती है आपकी। तो फर्स्ट आते हैं जैसे इनबाउंड लीड जनरेशन। तो इनबाउंड आपने सुना होगा, इनबाउंड होती है, आउटबाउंड और रेफरल। तो इनबाउंड क्या होती है यहाँ पर, इनबाउंड अट्रैक्टिंग लीड्स थ्रू वैल्यूएबल कंटेंट, ठीक है, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, ठीक है, या पीपीसी, कोई भी ऐसा मेथड जिससे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप हॉट लीड जनरेट कर रहे हैं, वो इनबाउंड लीड्स होती है। या आपने कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट डाला, वहां से डायरेक्ट किसी ने कॉल किया, या आपकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर वहां पर इंक्वायरी फॉर्म फिल कर दिया, वो इनबाउंड लीड्स के अंदर काउंट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका आउटबाउंड लीड्स। तो आउटबाउंड लीड्स में क्या होता है, कोल्ड कॉलिंग। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास कोई पहले से डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ईमेल का, या फिर आपके पास कोई नंबर्स का डेटा पड़ा हुआ है, और आप उस पर कॉल कर रहे हैं। तो वो कन्वर्ट होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं आज कन्वर्ट होगा, कल भी हो सकता है, या एक महीने के बाद भी हो सकता है। ये बहुत पुराना डेटा था, आप उस पर कॉलिंग करा रहे हैं, तो वो क्या होगा, आउटबाउंड लीड्स होगी आपकी, ठीक है। या डायरेक्ट आप किसी को मेल वगैरह भेजते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। एक होता है रेफरल लीड जनरेशन, ठीक है। रेफरल में क्या होता है, जो ऑलरेडी पहले से आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू कोई भी यूजर्स आता है या कोई भी आपकी लीड्स आती है, वो आपकी रेफरल लीड जनरेशन में आती है। तो तीन टाइप से यहाँ पर लीड जनरेशन होता है आपका, इनबाउंड, आउटबाउंड और रेफरल, ठीक है। तो मेन अगर आपको लीड जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, आप लीड जनरेशन आपको करना है, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, और किस टाइप का मुझे लीड जनरेशन करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाई लीड जनरेशन इज इम्पोर्टेंट। तो लीड जनरेशन इम्पोर्टेंट क्यों है आपका, देखो विदाउट लीड्स आप कोई बिजनेस आज की डेट में नहीं कर सकते। अगर आप चलिए रियल एस्टेट की कंपनी है आपकी, तो आपको लीड्स चाहिए। विदाउट लीड्स आप कैसे सेल करेंगे अपना प्रॉपर्टी या प्लॉट्स या आपकी फ्लैट्स वगैरह, ठीक है। तो लीड जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आज के डेट में हम बात करें तो। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट आता है आपका एक्सपेंड योर मार्केट। देखिए, लीड जनरेशन हेल्प्स यू फाइंड न्यू कस्टमर्स, ठीक है, who might not know about you yet। तो देखो, न्यू कस्टमर्स आपको मिलते हैं। आपको आप सपोज आपके पास 500 कस्टमर्स हैं, तो आपके जितना लीड जनरेशन करेंगे, कैंपेन चलाते हैं आप सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो आपके पास डेली बेसिस पे न्यू कस्टमर्स मिलते हैं जो आपके ब्रांड के बारे में या आपके बारे में नहीं जानते यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रो योर फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो पीपल है, ठीक है, इट हेल्प्स यू बिल्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, ठीक है। तो फॉलोइंग बढ़ती है, लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करते हैं यहाँ पर। बूस्ट योर रेवेन्यू, देखिए आपका रेवेन्यू भी बूस्ट होता है कि आपका लीड जनरेशन करते हैं, तो जो भी आपका बिजनेस है, जितनी भी लीड्स आपकी कन्वर्ट होती हैं, उससे रेवेन्यू भी आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं इससे, तो आपका रेवेन्यू बूस्ट कर सकते हैं इसे लीड जनरेशन के थ्रू। बिल्ड विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस, ठीक है, आपकी अवेयरनेस और विजिबिलिटी दोनों बढ़ती है यहाँ पर, ठीक है। लीड जनरेशन मेक्स मोर पीपल अवेयर ऑफ योर ब्रांड एंड व्हाट यू ऑफर। तो आपका जो ब्रांड है उसके बारे में लोगों को पता लगता है। देखिए, ठीक है, लीड्स अगर आपके पास नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक एड रन कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर मैं गूगल एड्स के ऊपर कोई बैनर एड रन कर रहा हूँ मैं,
तो हो सकता है उससे लीड्स कम आ रही हो या नहीं आ रही हो आपके पास, लेकिन आपके ब्रांड के बारे में लोगों को पता लग रहा है कि हाँ, ये भी मार्केट में कोई ब्रांड है। ठीक है, तो आप ब्रांड कब बनते हैं, जितना ज्यादा लोगों को पता लगता है, एक अच्छी क्वालिटी आप प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होता है कि आप अपने फ्रेंड से ही पूछते हैं तो उसको पता होगा, हाँ ठीक है, ये भी मैंने ब्रांड का नेम सुना है। तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी इंक्रीज होती है आपकी, अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन या कुछ भी रन करते हैं यहाँ पर तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूस कोल्ड कॉलिंग। देखिए, मैंने आपको बताया जैसे हॉट लीड्स होती है या फिर आपकी कुछ कोल्ड कॉलिंग भी होती है, कोल्ड लीड्स भी होती है आपकी। तो कोल्ड कॉलिंग भी आपकी रिड्यूस होती है। अब कोल्ड कॉलिंग क्या होगा? देखिए, कोल्ड कॉलिंग होता है आपका कि जैसे आपके पास पहले से एक डेटा पड़ा हुआ था नंबर्स का, आपने कहीं से एक डेटा परचेज कर लिया मार्केट में, बहुत सारे मार्केट में डेटा प्रोवाइडर हैं जो डेटा देते हैं। तो आपने उस पे ईमेल मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया, आपने उस पे कॉल करना स्टार्ट कर दिया आपकी सेल्स की टीम ने, तो कोल्ड कॉलिंग, ठीक है, वो होती है। तो कोल्ड कॉलिंग भी आपकी रिड्यूस होती है, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग से देखिए कन्वर्जन आता है बट कन्वर्जेशन बहुत कम होता है कोल्ड कॉलिंग की हम बात करें तो कोल्ड कॉलिंग आपकी रिड्यूस होती है, क्योंकि हम यहाँ पर कैंपेन जब रन करते हैं गूगल के ऊपर, तो हमारे पास जो हॉट लीड्स आती है आपकी, उस पे कन्वर्जन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं, बट ये बहुत इफेक्टिव नहीं होता इतना कोल्ड कॉलिंग आपका। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ लीड्स। ठीक है, लीड्स अलग अलग टाइप्स की होती है, आपने देखा होगा, जैसे कोल्ड है, मैं अभी बात कर रहा था कोल्ड कॉलिंग की, कोल्ड लीड्स की बात कर रहा था। वार्म लीड्स है आपकी और हॉट लीड्स है। ठीक है, तो लीड्स जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप जो इंटरेस्ट शो कर रहा है यूजर्स, वो लीड्स है यहाँ पर। तो कोल्ड लीड्स क्या होगी यहाँ पर? ठीक है, तो कोल्ड लीड्स आर पीपल और बिजनेसेस हु हैव शोन लिटिल टू नो इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और एंड सर्विसेज। ठीक है, कि वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बट बहुत कम शो कर रहे हैं आपकी सर्विसेज के अंदर या आपके आपके प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो वो कोल्ड लीड्स के अंदर काउंट होती है कि आया तो यूजर्स थे बट यूजर्स 10 यूजर्स 20 यूजर्स ऐसे थे जो बहुत कम ही आपका इंटरेस्ट शो कर रहे थे। वार्म लीड्स क्या है यहाँ पर? वार्म लीड्स आर पोटेंशियल क्लाइंट्स दैट हैव शोन इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, दे आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशन एंड मे हैव एंगेज विद योर मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, तो फॉर्म लीड्स क्या है यहाँ पर? शो तो कर रहे हैं आपका इंटरेस्ट, ठीक है, बट अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। एंड हॉट लीड्स क्या है यहाँ पर? हॉट लीड्स इज क्वालिफाइड लीड्स। ठीक है, क्वालिफाइड मतलब हो सकता है किसी ने कॉल करके सेल्स की टीम में उस पर कॉल भी किया हो, वेरीफाई भी किया हो। लीड हु इज हाईली इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड इज रेडी फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आस्किंग फॉर द सेल। तो हॉट लीड्स में क्या है? डायरेक्ट उसने फॉर्म फिल किया एंड उसके बाद शायद आपने आपकी सेल्स टीम ने उसको कॉल किया, और उसके बाद उसमें चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो कन्वर्जन के इसके, कि मुझे सपोज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी सर्च कर रहा हूँ कोई भी, या मैं एसईओ सर्विसेज एजेंसी सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे एसईओ कराना है अपनी वेबसाइट का। तो मैंने आज ही मुझे कराना है, बट मुझे कितने दिन के अंदर, मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है मुझे एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर कोई अच्छी कंपनी मिलती है, एजेंसी मिलती है, तो मैं उससे ऐसी सर्विसेज ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंक्वायरी पे बहुत सारी गूगल पे सर्च करूंगा, इंक्वायरी फॉर्म फिल करूंगा एंड 5 या 10 वेबसाइट्स या कंपनी की मेरे पास कॉल आएगी, एंड उसमें से चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे 10 दिन के अंदर ऐसी कंपनी सर्च कर रहा हूँ मैं, तो कोई ना कोई कंपनी तो चूज करना ही मुझे। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि कन्वर्जन 90-100% का कन्वर्जन रेशियो है कि मैं कन्वर्ट हो सकता हूँ किसी ऐसी कंपनी के साथ। ठीक है, तो ये क्या है कि हॉट लीड्स में होगा कि हाँ मुझे चीज चाहिए, या गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो उसको वो चीज चाहिए, इसलिए वो सर्च कर रहा है। लेकिन इसीलिए कभी कभी देखा होगा आपने, सोशल मीडिया है या फेसबुक है, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी हॉट लीड्स इतनी नहीं होती है। यूजर स्क्रॉल कर रहा था या रील्स देख रहा था, सडनली उसको ऐड दिखे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के सर्विसेज का, तो उसको करवाना हो सकता है, काम करवाना हो, बट अभी नहीं करवाना उसको। या कोई टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, उसको पैकेज बेच रही है, सेल कर रही है, वो किसी को 4 धाम में कुछ भी हो सकता है, तो वो पैकेजेस बेच रही है बट किसी को जाना है, अभी नहीं जाना वहां। तो वो एक क्या है कि ठीक है इंक्वायरी फॉर्म फिल तो कर देगा, बट वो इंटरेस्ट शो कर रहा है लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ, हॉट लीड नहीं है। लेकिन गूगल पे वो सर्च कर रहा है जो जिसको चाहिए वो पैकेज। ठीक है, उसको 4 धाम या कहीं पर भी उसको जाना है, तभी उसको वहां पर गूगल में टाइप कर रहा है वो कीवर्ड। ठीक है, तो वो हमारी हॉट लीड्स होती है यहाँ पर। ठीक है, तो कोल्ड वार्म एंड हॉट 3 टाइप्स की हमारी जो लीड्स होती है जिन पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और हॉट लीड्स में हमारे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कन्वर्जन के। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन का प्रोसेस क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले पता हो कि आपकी ऑडियंस क्या है। मैंने बताया कि आपको अपने बिजनेस के बारे में भी समझना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस क्या है और किस
लोकेशन पे मुझे टारगेट करना है, किस टाइप के लोगों को टारगेट करना है, ऑडियंस क्या होगी आपकी। तो सबसे पहले आता है नो योर ऑडियंस, कि आप जब लीड जनरेशन करते हैं तो आपको एक ऑडियंस के बारे में पता हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस टाइप की है, किस टाइप की ऑडियंस आपको टारगेट करनी चाहिए, लोग किस टाइप की ऑडियंस हमारी चीज को सर्च करती है, देखती है, ठीक है। तो आपको ऑडियंस के बारे में जरूर पता हो, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च करिए आप, अलग अलग वेबसाइट पे जाइए, गूगल के बहुत सारे टूल्स हैं, कीवर्ड प्लानर है, इसके अलावा गूगल ट्रेंड्स पे जाइए। तो अलग अलग टूल्स पे जाकर चेक करिए, ठीक है, कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट से रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिसर्च, मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि मार्केट में चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च में क्या करेंगे आप, एनालाइज करिए, डेमोग्राफिक्स को एनालाइज करिए, ठीक है। एंड बिहेवियर देखिए, लोगों का कि बिहेवियर क्या है, बायर पर्सन कौन से हैं आपके, ठीक है। तो ये मार्केट एनालाइज आप कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल भी है आज के डेट में मार्केट में, ठीक है, जो क्लास के अंदर हम लोग बताते भी है प्रॉपर, जब वो एड्स की क्लास करते हैं तो कैसे हमें न्यू यूजर्स को फाइंड करना है, ऑडियंस को कैसे हमें सर्च करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लास के अंदर ही बताया जाता है। तो आप मार्केट रिसर्च करिए, ठीक है। एंड उनका एज ग्रुप क्या होगा, ठीक है। एंड किस टाइप की एज ग्रुप को मुझे टारगेट करना है, जेंडर क्या होगा उनका, क्या लोग सर्च कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना पहले से जरूरी है, तभी आप कोई कैंपेन या लीड जनरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। देखो, आप जब लीड जनरेशन करोगे तो फिर आपका जो क्या कंटेंट आप दिखा रहे हैं यूजर्स को, वो बहुत इफेक्टिव होता है। कि आपने एक लैंडिंग पेज बनाया है, आपने कोई एक ऐड क्रिएट किया है, तो आपका जो ऐड है, आपका जो कंटेंट है वो कैसा है, कितना एंगेजिंग कंटेंट है आपका, ठीक है। तो आप फोकस करिए कि आपका जो कंटेंट है वो एंगेजिंग हो, ठीक है, लोगों को एंगेज करे, कि जिससे ज्यादा आपके लोग आए, ठीक है, आपकी ऐड के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसमें सीटीए बटन वगैरह आपका क्लियर होना चाहिए, आपका वीडियोज है, कॉन्टेंट्स है, आपका ई बुक्स है, आर्टिकल्स है, ठीक है। तो किस टाइप का कंटेंट आप दिखा रहे हैं यूजर्स को, वो बिल्कुल फोकस हो, क्लियर हो यूजर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रमोट कंटेंट अक्रॉस योर बिजनेस चैनल्स। तो आपको क्या करना है, कंटेंट आपको प्रमोट करना है, ठीक है। एंड कौन कौन सी चैनल्स के ऊपर, तो चैनल्स की हम बात करें तो जैसे सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है, एसईओ है, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे आप प्रमोट कर सकते हैं अपने कंटेंट को, ठीक है। कंटेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंटेंट खाली टेक्स्ट नहीं होता, ठीक है। कंटेंट की अगर बात करें, कंटेंट आपकी इमेजेस भी है, कंटेंट वीडियोज भी है, पॉडकास्ट भी है, कंटेंट ही है आपका, ठीक है। एंड वीडियोज आ जाते हैं आपके, पीडीएफ फाइल हो जाती है, पीपीटी होती है, दीज आर कंटेंट्स। तो ये सारे कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है किस टाइप का कंटेंट को मुझे कौन से चैनल्स के ऊपर, मुझे सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करना है। सोशल मीडिया में किस पर, ट्विटर पे हो सकता है, लिंक्डइन पे हो सकता है, इंस्टाग्राम पर हो सकता है, कि ऑडियंस आपकी कहाँ पर ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है कंटेंट के अंदर। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आप सेलेक्ट करिए। ईमेल मार्केटिंग, अगर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपके पास बहुत अच्छी लीड्स आ रही है तो आप ईमेल मार्केटिंग टारगेट करिए, ठीक है, उसमें ऑडियंस को टारगेट करिए, ठीक है। एसईओ से अगर आ रही है तो आप एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाईलाइट यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। तो आपको हाईलाइट करना है अपने लैंडिंग पेज में या अपने ऐड के ऊपर, ठीक है, कि आपकी यूएसपी क्या है, ठीक है। तो यूएसपी आपको पता होगा कि यूएसपी आपकी क्या है, आपके आपके बिजनेस की। तो कुछ ऐसा रखिए अट्रैक्टिव सा कि भाई मेरी यूएसपी ये है, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ इस इन लोगों से, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, बिल्कुल सबसे अलग प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं ये सारी चीजें। तो वो आपको यूएसपी में यहाँ पर अपने मेंशन करना होगा ऐड के अंदर, ठीक है। अगर सारे लोग एक जैसा ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, या सारे लोग एक जैसा लैंडिंग पेज दिखा रहे हैं यूजर्स को, तो कोई फायदा नहीं है आपके ऐड रन करने का। यूजर्स आएगा भी, विजिट भी करेगा, बट आपके पास लीड्स नहीं आएगी, कन्वर्जन नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। इसीलिए होता है कि आपने देखे ऐड रन किया होगा आपने, आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि आपने ऐड रन किया, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, कोई सा भी ऐड रन किया गूगल के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर, तो वहां पर आपकी कैंपेन की कॉस्ट चली जाती है, बजट लग जाता है, बजट बर्न हो जाता है, उसके बाद भी आपके पास लीड्स नहीं आती, ठीक है। तो लीड्स क्यों नहीं आती है आपके पास, ठीक है। आप तो देखते हैं, ठीक है, मैंने इमेज भी बहुत अच्छा बना दिया, मेरा लैंडिंग पेज भी ठीक लग रहा है मुझे, तो आपने ऑडियंस ठीक से टारगेट नहीं किया होगा, ठीक है। ऑडियंस अगर आपने ठीक से टारगेट किया होता तो आपके पास कन्वर्जन रेशियो भी ठीक होता, क्योंकि आप तो इमेज तो बहुत अच्छी दिखा रहे हैं, आप कंटेंट बहुत अच्छा दिखा रहे हैं आप यूजर्स को, बट आपकी जो ऑडियंस है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको दिखाने स्टूडेंट्स को तो आप दिखा रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को, या प्रोफेशनल्स को दिखाना था आप दिखा रहे हैं सभी को, ठीक है।
या फिर आपने ऑडियंस बहुत अच्छा टारगेट किया बट यूजर्स जब जा रहे हैं आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, वहां पर उसको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा, प्रॉपर इमेजेस नहीं है। सीटीए बटन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कॉल टू एक्शन बटन, जहां पर आपका बाय नाउ, क्लिक हियर, ये सारी चीजें आप क्लिक करवाते हैं, एक्शन करवाते हैं उससे, वो यूजर को शो ही नहीं होता, वो देख रहा है जहां पर मैं क्लिक करूँ, ठीक है। आपका इंक्वायरी फॉर्म नहीं है प्रॉपर से। तो ये सारी चीजें आपकी फोकस करते हैं हम लोग आपकी एड के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर, तब हमारे पास एक प्रॉपर लीड्स आती है, ठीक है। क्योंकि जब हम क्लास करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो प्रॉपर गूगल एड्स की क्लास में ही बताया जाता है कि इफेक्टिव लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, बना के भी दिखाया जाता है उसके अंदर, क्लास के अंदर, ठीक है। तो यूएसपी आपको मेंशन करना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, बेनिफिट्स हैं क्या है आपके, ठीक है। अपनी फोकस करिए फीचर्स के ऊपर कि आप कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब यूएसपी का मैसेज आपका क्लियर हो, ठीक है। तो आपका जो मैसेज है वो आपका क्लियर शो होना चाहिए यूजर्स के, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ लीड जनरेशन में हम लोग ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं, तब आप प्रॉपर लीड जनरेशन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है लैंडिंग पेज। देखिए हम बात कर रहे थे अभी कि हमारा जो लैंडिंग पेज है, इफेक्टिव लैंडिंग पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका जो यूजर्स जिस पेज के ऊपर आप लैंड करा रहे हैं यूजर्स को, वो कितना इफेक्टिव है आपका, कितना अच्छा आपने क्रिएट किया हुआ है आपका लैंडिंग पेज, ठीक है। तो लैंडिंग पेज देखिए आपका हम अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारी जो ऑलरेडी वेबसाइट है उसमें जैसे कोई एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अंदर जो आपका लैंडिंग पेज पहले से बना हुआ है एसईओ सर्विसेज का, उसी पे ही यूजर्स को रिडायरेक्ट करा देते हैं वो लोग, ठीक है। तो हो सकता है वो इसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा हो सकता है उसके वो आपने एसईओ पर्पज से बनाया हो, ठीक है। तो आप एसईओ के अंदर क्या होगा, कंटेंट आप ज्यादा यूज करेंगे तो वो रैंक करेगा। बट यूजर जब आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो कंटेंट इतना सारा कंटेंट पढ़ने के लिए नहीं आ रहा आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक इफेक्टिव लैंडिंग पेज के अंदर प्रॉपर इमेजेस, इमेजेस की क्वालिटी हो आपकी फुल एचडी में, आप इमेजेस यूज करें। एंड उसके बाद इंक्वायरी फॉर्म, आपका जो इंक्वायरी फॉर्म यूआई एक अच्छा दिखना चाहिए, आपका इंक्वायरी फॉर्म प्रॉपर तरीके से शो हो यूजर्स को, जिससे यूजर्स अपना डिटेल्स वगैरह, अपने यूजर्स अपना डिटेल्स फिल कर सके प्रॉपर तरीके से। सीटीए बटन, सीटीए बटन जैसे बाय नाउ, क्लिक हियर, ठीक है, गेट स्टार्टेड, कॉल नाउ, तो ये सारे क्या है, सीटीए बटन है आपके। तो ये सीटीए बटन प्रॉपर दिखने चाहिए आपके यूजर्स को, जिससे वो क्लिक करेगा तभी वो कॉल कर सकता है, ठीक है। और सीटीए बटन बहुत छोटा सा रख दिया, साइड में रख दिया, या सबसे फुटर में लगा दिया, कोई फायदा नहीं है आपके लैंडिंग पेज का, ठीक है। तो कुछ जैसे आपको मैं पॉइंट्स बताता हूँ कि यहाँ पर इफेक्टिव लैंडिंग पेज में आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो, ठीक है, क्लियर ऑब्जेक्टिव कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो मेन पर्पज आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट सेल करा रहे हैं या लीड जनरेशन कर रहे हैं या कुछ और भी हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए आपका गोल। एंड आपका सीटीए बटन, बटन स्ट्रॉन्ग सीटीए बटन आपको यूज करना है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी सॉफ्टवेयर वाली वेबसाइट्स हैं जो आपको एप्स डाउनलोड करवाती हैं, तो आपने देखा हो हर जगह उनका ना कहीं डाउनलोड का बटन आएगा, आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ, ठीक है। तो यूजर्स क्लिक कर ही देता है कहीं ना कहीं वो उस पे, और वो डाउनलोड एप्लीकेशन उनकी हो भी जाती है आपके मोबाइल के अंदर या आपके डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। तो वो बटन क्लियर दिखना चाहिए आपका, डाउनलोड, बाय नाउ, क्लिक हियर, ठीक है। इंगेजिंग विजुअल्स, देखो आपको विजुअल्स पे ही फोकस करना है। विजुअल्स में जैसे आपकी इमेजेस है, आपकी वीडियोज है, ठीक है, तो वो एंगेजिंग हो। आज के डेट में इन्फोग्राफिक्स इमेजेस यूज होती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स का आप यूज करिए इमेजेस में, तो जिससे यूजर्स को पता लगता है कि आप क्या बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियोज आप यूज करिए, तो वीडियोज एक प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की आप वीडियोज लगाइए, यूजर्स को इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लगाइए, यूजर्स को दिखाइए वहाँ पर। उसके बाद आता है लोडिंग टाइम। आपका जो पेज है उसका लोडिंग टाइम फास्ट होना जरूरी है, कि आपने पेज तो बहुत अच्छा से बना दिया बट आपका लोडिंग टाइम बहुत स्लो है पेज का, ठीक है। पेज बहुत स्लो लोड हो रहा है आपका, तो जब पेज आपका स्लो लोड होगा तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका बाउंस रेट भी इंक्रीज होगा, यूजर से के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पेज पर ही वो इंक्वायरी फिल करेगा, उसके लिए अदर ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें क्या करना है, आपका लोडिंग टाइम आपका फास्ट होना जरूरी है, ठीक है। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर आपका पेज लोड हो जाए, ठीक है। तो लोडिंग टाइम आपका फास्ट हो। उसके बाद आता है आपका मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है, आपका जो पेज है या वेबसाइट है आपकी मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है, ठीक है। एंड बुलेट पॉइंट्स का आप यूज करिए। अगर हम बात करते हैं लैंडिंग पेज की, तो आप बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, जो भी आप मेंशन कर रहे हैं, हेडिंग्स वगैरह यूज करिए। पॉइंट्स से ये होता है कि यूजर को, देखो आप सपोज एक पेज के ऊपर 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखता हूँ मैं,
तो 500 वर्ड्स का कंटेंट अगर मैं कंटिन्यूअसली लिखता जाता हूँ जाऊंगा, उसको पैराग्राफ में डिवाइड नहीं करूंगा तो कोई फायदा नहीं 500 वर्ड्स का। ठीक है, कोई भी उसको रीड नहीं करेगा, कोई नहीं पढ़ेगा उस कंटेंट को। अगर मैं उसको पॉइंट्स में लिखूंगा तो आप आराम से इजीली इजीली आप उसको रीड कर सकते हैं उस कंटेंट को। तो हमेशा पॉइंट्स को ना, कंटेंट को पॉइंट्स में ही लिखा करिए। ठीक है, और हेडिंग्स का यूज करिए, पॉइंट्स का यूज करिए आप उसके अंदर। आप लास्ट में आपने देखा होगा सर्विसेज वाली जितनी वेबसाइट्स होती है, आप एफएक्यू रख सकते हैं आप उसके अंदर। ठीक है, तो एफएक्यू आपको मिलेगा ही, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड एसईओ। ठीक है, तो एफएक्यू रखिए, उससे ये होता है यूजर्स के माइंड में जो भी क्वेरी है, उसके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, वो आपको वहां पर ही आप सॉर्ट आउट कर देते हैं उसको अपने एफएक्यू वाले पेज पर। तो वो भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। ठीक है, और ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ, आप फिर अपना जो लैंडिंग पेज है वो एसईओ पर्पज से भी आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कंटेंट है, हेडिंग से। अब एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे होगा, तो आप कंटेंट यूज कर रहे हैं, हेडिंग्स यूज कर रहे हैं, उसमें कीवर्ड्स आप यूज करते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। इस तरीके से आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका एक इफेक्टिव लैंडिंग पेज बनता है। देखो, पेज जब भी आप क्रिएट करते हो तो ऐसा नहीं है आज आपके 1 मंथ तक तो बहुत अच्छी लीड्स आ रही थी, आफ्टर 1 मंथ आपकी लीड्स कम होना स्टार्ट हो जाती है, कम हो भी जाती है कभी कभी। ठीक है, जो आ रही थी, मान लीजिए एक दिन में 20 लीड्स आ रही हैं, 20 हो सकता है 10 लीड्स आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक लैंडिंग पेज आप हमेशा के लिए बनाकर रन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, आपको मार्केट देखना पड़ेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस टाइप का पेज क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, अपने ऐड में क्या चेंजेस किए। तो आपको एक पेज या फिर आपका एक ऐड जो आपने क्रिएट किया बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो 1 महीने 2 महीने या कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर हो सकता है वो आपका परफॉर्म करना बंद कर दे, या कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो आपका, ठीक है, जो लीड्स दे रहा था उतना दे दे, थोड़ा कम देना स्टार्ट कर दे। तो उसमें आपको चेंजेस करना पड़ेगा, आपको कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा रेगुलर। ठीक है, आपको हेडलाइंस चेंज करना पड़ेगा, आपको इमेज हो सकता है इमेज चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार आपने बना दिया, उसको बना के हमें नहीं छोड़ना होता है। ठीक है, हमें इसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम, अपने कंटेंट को भी और अपने ऐड को भी। ठीक है, तो लीड जनरेशन टेक्निक्स आते हैं। देखो, लीड जनरेशन की अगर हम बात करें तो लीड जनरेशन अलग अलग टाइप से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो लीड जनरेशन में जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, पे पर क्लिक है, सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, लीड जनरेशन के लिए लीड मैग्नेट भी होता है। ठीक है, इसके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं आपके। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आप टेक्निक्स यूज करते हैं, जहाँ पर आप एसईओ करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आप एसईओ करेंगे, आपको 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ्स का एक टाइम लगेगा। जब आपकी वेबसाइट टॉप पर आ जाएगी कि बट किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, तब आपके पास यूजर्स आने स्टार्ट होगा और उसके बाद आपके पास लीड्स आनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको 10 यूजर्स ने या 20 यूजर्स ने विजिट किया आपकी वेबसाइट के ऊपर तो उस 10 या 20 यूजर्स में से 20 यूजर्स ही आपके पास इंक्वायरी फॉर्म फिल करके आएंगे। ठीक है, उनकी सारी लीड्स आपके पास आ जाएंगी। तो 20 यूजर्स अगर आपकी वेबसाइट पे आते हैं, 20 यूजर्स में आपके पास जो आते हैं लीड्स आ रही है 5 6 7 8, इतना लगभग आपकी जाती है। ठीक है, तो इतनी लीड्स अगर आपकी आ रही है तब भी ठीक है। तो यहाँ पर आप एसईओ कर सकते हैं, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आपको टाइम लगेगा। ठीक है, इट्स अ फ्री। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, पीपीसी पे आप जा सकते हैं। देखिए, पीपीसी में गूगल एड्स भी आ जाता है, पीपीसी के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, जहाँ पेड एड आप रन करते हैं। तो आप जहाँ पर पे कर रहे हैं और पे करने के बाद आपके पास लीड जनरेशन का ऑप्शंस मिल जाता है कि अलग अलग टाइप्स के आप कैंपेन चला सकते हैं। तो इसके थ्रू मैं लीड जनरेशन कर सकता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकता हूँ, मैं ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकता हूँ, बट उसमें तो बहुत ही ज्यादा आपको टाइम लगेगा हमेशा। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग आ जाते हैं। ईमेल मार्केटिंग जिसमें आप बल्क में मेल सेंड करते हैं बहुत सारे लोगों को और वहां से भी आपके पास लीड्स और आती है, बट इसका रेशियो भी बहुत ज्यादा कम रहता है। ठीक है, लीड मैग्नेट होता है, आप किसी को कुछ भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू आप, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टूल्स होते हैं जो फ्री ट्रायल्स देते हैं आपको 1 वीक का या 15 डेज का या 1 मंथ का। तो वो फ्री क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर आप उनकी वेबसाइट पे जाकर साइन अप करते हैं, और साइन अप करते हैं तो अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं। ठीक है, तो उनके पास आपकी लीड्स मिल गई, आपकी इन्फॉर्मेशन मिल गई और आपने 15 डेज के लिए फ्री टूल मिल गया। उसके बाद आपके पास मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है, वो लीड मैग्नेट का प्रोसेस है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स है यहाँ पर कि जिससे आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, तो गूगल एड्स के अंदर हम यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा अभी गूगल एड्स के अंदर सर्च कैंपेन में बताऊंगा। गूगल एड्स के अंदर अलग टाइप्स के कैंपेन है जिससे हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, चाहे वो डिस्प्ले हो, वीडियो हो, पी मैक्स हो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन हो या सर्च कैंपेन हो। ज्यादातर सबसे पहले लोग सर्च कैंपेन के ऊपर जाते हैं गूगल एड्स के अंदर। ठीक है,
आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि कैंपेन्स होते हैं गूगल के अंदर अलग अलग टाइप्स के, जहाँ पर जिस लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस टाइप का कैंपेन रन करना है, ठीक है। तो गूगल एड्स के अंदर हम यहाँ पर सर्च कैंपेन की बात कर रहे हैं अभी। सर्च कैंपेन सबसे ज्यादा यूज होता है और लीड्स के लिए भी होता है, आपका सेल्स के लिए भी लोग चलाते हैं इसको, और हर बिजनेस के लिए यूज किया जाता है गूगल एड्स में सर्च कैंपेन, ठीक है। तो मैं अभी एक सेटअप करके आपको बताऊंगा कि गूगल एड्स में हम कैंपेन कैसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस देखो एक दिन में नहीं होता कभी भी, ठीक है। जब हम कैंपेन रन करते हैं, बजट लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कैंपेन की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं उसके अंदर, ठीक है। बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपका। तो जब हम क्लास करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसके अंदर प्रॉपर मैं सेटअप बताता हूँ कि भाई आपका कैंपेन लाइव करके भी दिखाया जाता है क्लास में स्टूडेंट को, जहाँ पर हम लाइव करने के बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट डे क्या रिजल्ट आया उसके अंदर, फिर उसमें क्या चेंजेस करना है, किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसका क्वालिटी स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, तो ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करते हैं, इफेक्टिव कैंपेन, अपनी एक हमारी जो कंपनी है ट्राई फॉर आईटी सर्विसेज, उसके लिए मैं यहाँ पे एक लीड जनरेशन कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी कंपनी है ट्राई ऑन फॉर आईटी सर्विसेज, एंड हम लोग इसमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट भी है और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मैसेज सर्विसेज, पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो मुझे इस कंपनी के लिए, इस वेबसाइट के लिए लीड जनरेशन करना है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर एक एड क्रिएट करना है, इफेक्टिव एड कैंपेन, एड कॉपी क्रिएट करनी है यहाँ पर एसईओ सर्विसेज के लिए। तो हम यहाँ पर जाते हैं सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पर एक पेज बना हुआ है एसईओ सर्विसेज। एसईओ सर्विसेज कंपनी इन दिल्ली, ठीक है। तो ये एक पेज है, इसके लिए मुझे यहाँ पर एक सर्च कैंपेन क्रिएट करना है, ठीक है, जिससे मेरे पास यूजर्स विजिट करेगा इस लैंडिंग पेज के ऊपर, और यहाँ पर मेरे पास लीड्स आएंगे, ठीक है। लीड्स कहाँ पर आएगी, जैसे ये क्या है, एक सीटीए बटन है, जो हम बात कर रहे थे सीटीए बटन की। तो कोई भी क्लिक करता है गेट स्टार्टेड पे या कॉल नाउ पे, कहीं पर भी, ठीक है, तो वो वहां पर इसके सामने एक पॉपअप ओपन होता है, और पॉपअप के पे उसका यूजर नेम, सॉरी, एंटर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ये सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर सकता है, और मेरे पास उसकी डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। तो इट्स अ लीड। तो मैं यहाँ पर, मेरा मेन पर्पज क्या है, यूजर्स इस लैंडिंग पेज को विजिट करे, और विजिट करने के बाद इस पॉपअप को ओपन करे या सीटी बटन पर क्लिक करेगा, और वो यहाँ पर लीड्स जनरेट करे या अपनी इंफॉर्मेशन फिल करे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। गूगल एड्स पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी जीमेल आईडी से साइन अप कर लीजिए, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। जब आप साइन अप करते हैं तो आपका, आपसे आपका कंट्री, आपकी करेंसी और आपका टाइम, ठीक है, तीन चीजें आपसे पूछता है, वो बाद में चेंज नहीं होता। तो जिस कंट्री जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, इंडिया में रहते हैं, नेपाल में, जिस कंट्री में भी रहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बाद में वो करेंसी वगैरह चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तीन चीजें होती है, कैंपेन होता है हमारा, एड ग्रुप होता है हमारा, और उसके बाद ऐड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं हम कैंपेन के ऊपर, न्यू कैंपेन। कैंपेन में आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है कि भाई आपको चूज करना है ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। कि आप जैसे सर्च कैंपेन की अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो सर्च कैंपेन क्यों रन करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो आपको लीड जनरेट करनी है, आपको ट्रैफिक लेकर आना है, ऐप प्रमोट करना है, क्या करना चाहते हैं आप। तो जैसे मुझे यहाँ पर लीड जनरेट करनी है, तो मैंने लीड सेलेक्ट किया। गोल आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वन गोल एक डिफॉल्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर गोल क्रिएट करना है, तो एक आगे हमें गोल सेटअप का ऑप्शन आता है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आप गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी कन्वर्जन मैंने कुछ भी सेटअप नहीं किया, ये ऑलरेडी मेरे पास है पहले से। एक कन्वर्जन आपके पास रहेगा जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कैंपेन टाइप। अब मुझे कैंपेन कौन सा रन करना है, तो मुझे अभी जो कैंपेन रन करना है, मुझे सर्च कैंपेन रन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट किया सर्च। तो यहाँ पर आता है आपका गोल क्या है, पर्पज क्या है कैंपेन रन करने का। तो मुझे यहाँ पर जो विजिट करवाना है, अपनी वेबसाइट पे करवाना है, ठीक है। फोन कॉल्स करवाना है, शॉप विजिट करवाना है, लीड फॉर्म सबमिशन करवाना है, इसका जो अपना लीड फॉर्म है उस पर लेकर जाना है मुझे, ठीक है। तो मुझे इसके लीड फॉर्म पे नहीं जाना है, मुझे अपनी जो वेबसाइट पे मेरी इंक्वायरी फॉर्म है, मुझे उस पर लेकर जाना है। तो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर वेबसाइट विजिट।
वेबसाइट विजिट में आपका यूआरएल पूछ रहा है यहाँ पर, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम में मैंने यहाँ पर अब हमारा जो एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली वाला पेज है, मैंने उसका यूआरएल यहाँ पर यूज किया। कैंपेन नेम, ट्रायोन्फो लीड राइट। नेक्स्ट आता है बिडिंग। देखो आप जो कैंपेन रन कर रहे हैं इसमें बिडिंग कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप। देखो बिडिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कन्वर्जन भी है, आपका क्लिक्स भी है, ठीक है, इंप्रेशंस भी होती हैं, ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू भी आप सेट कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के हम लोग यहाँ पर बिड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिडिंग आपको समझना जरूरी है कि आपको कौन सी बिड यूज करना है, कन्वर्जन पे चलाना है तो आपको कन्वर्जन पे चार्ज करेगा, या फिर आपको क्लिक्स पे रन करना है। तो मुझे अभी जो करना है वो क्लिक्स पे रन करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझसे जो चार्ज करेगा गूगल, वो पर क्लिक पे चार्ज करेगा, ठीक है। तो बिड कॉस्ट के अकॉर्डिंग करेगा। यहाँ पर बिड कॉस्ट क्या होगी, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स पहले से कीवर्ड प्लान से निकाले हुए, आप कीवर्ड प्लान से कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, एसईओ कंपनीज इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन पे मुझे यहाँ पर बिड कॉस्ट भी मुझे शो होती है। कहाँ होगी, जब आप कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करेंगे, वहां पर आप सर्च करेंगे कीवर्ड्स, ठीक है। तो आपको टाइप करना है कीवर्ड्स की एसईओ कंपनी इन दिल्ली। तो बहुत सारे कीवर्ड्स आपको सजेस्ट करके दे देगा, और हर किसी की बिड यहाँ पर दिखाएगा आपको कि एसईओ कंपनी दिल्ली की बिड हो सकती है, जैसे ये कीवर्ड है, इसकी बिड हो सकता है आपकी 50 से, और आपकी हो सकता है 80 रुपीज हो, मिनिमम और मैक्सिमम बिड, ठीक है। सेकंड कीवर्ड्स की बिड अलग हो सकती है, थर्ड की आपकी बिड अलग हो सकती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको बिड सेट करनी है, मैक्सिमम बिड आप कितना लगाना चाहते हैं। देखिए दो तरीके से हम बिडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ऑटोमेटेड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मैनुअल बिडिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटेड अगर बिडिंग पे जाते हैं आप, तो फिर गूगल अपने आप चार्ज करेगा। जो भी एक कीवर्ड की बिड चल रही है, जो भी कीवर्ड्स आपने यूज किए, ठीक है, वो हो सकता है आपकी 50 भी चार्ज कर सकता है, 60 कर सकता है, 50 65 कर सकता है, या फिर 80 भी जा सकता है वो, ठीक है। अगर आप सारे कीवर्ड्स की कंबाइन करके यहाँ पर मैक्सिमम कॉस्ट अगर आप देना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर मैक्सिमम जो बिड कॉस्ट देनी है वो 80 रुपीज देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी 80 रुपीज या मैक्सिमम सीपीसी बिट कॉस्ट यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो मैं ऑटोमेटेड पे नहीं जा रहा अभी। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आता है गूगल के सर्च पार्टनर्स और डिस्प्ले पार्टनर्स, ठीक है। तो अभी हम सर्च पार्टनर्स पे आते हैं। तो गूगल के अपने कुछ पार्टनर्स भी हैं जहाँ पर आपका एड शो होगा, मतलब गूगल पे भी एड शो होगा, गूगल के पार्टनर्स पे भी होगा। पार्टनर्स कौन से हैं, जैसे यहाँ पर गूगल का बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, जैसे आस्क है एग्जाम्पल के लिए, ask.com। तो यहाँ पर जो आपका एड गूगल पे शो हो रहा है वो आस्क पे भी शो होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क्स है ये गूगल के, ठीक है। तो ये मैंने अभी सिलेक्ट किया कि यहाँ पर गूगल पे और गूगल के पार्टनर्स पे भी एड शो मेरा। नेक्स्ट आता है आपका लोकेशन। तो मुझे जो लोकेशन टारगेट करना है, मुझे अपना एड, मैं ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ पर कर रहा हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर में कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जो अपना एड दिखाना है वो दिल्ली के अंदर टारगेट करना है। मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर लोकेशन पे दिल्ली। आप पिन कोड भी टाइप कर सकते हो, वो सिटी भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो दिल्ली, दिल्ली में मैंने इंक्लूड, एक्सक्लूड और नियर बाई, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया इंक्लूड, कि मुझे दिल्ली को टारगेट करना है, ठीक है। आप रेडियस के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, कि मुझे यहाँ पर जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है नोएडा सेक्टर 62 में है, आइथम टावर, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ पर टारगेट करना है किलोमीटर वाइज, और जैसे मैंने यहाँ पर टारगेट किया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का एरिया मुझे टारगेट करना है, किसका, आइथम टावर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टारगेट कर सकता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन के 5 किलोमीटर के एरिया में टारगेट कर सकता हूँ कि वहां पर उनको एड शो हो मेरा। और देखिए डिपेंड करता है आपका बिजनेस में जो लोग हैं वो कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, या मैं कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास इंस्टीट्यूट में कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कोर्सेज कराते हैं। तो
ऑनलाइन में तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है, वो हो सकता है दुबई से हो सकता है वो नेपाल से हो, कहीं से भी हो, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में कहाँ से आ सकता है दिल्ली एनसीआर के अंदर? तो मैं यहाँ पर एक मैंने जैसे टारगेट किया, चलिए मेरे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेडियस में लोग आ सकते हैं मेरे पास, तो मैं उनको ही ऐड दिखाना चाहता हूँ ऑफलाइन के लिए। बट ऑनलाइन है तो पूरे इंडिया में भी चला सकता हूँ, ठीक है, या आउट ऑफ कंट्री में भी जा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिल्ली एनसीआर टारगेट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर टारगेट किया ये आइटम टावर। लोकेशन ऑप्शन आता है आपका, जहाँ पर आप लोकेशन टारगेट जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपकी फर्स्ट ऑप्शन है पीपल इन रेगुलरली इन हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन आ रहा है तो आपका प्रेजेंस में पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूड लोकेशन, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में क्या है कि जैसे जो लोकेशन में बैठकर आपके सर्च कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं बाहर से, तो उनको भी आपका एड शो हो रहा है, ठीक है। जैसे दिल्ली में बैठे हुए हैं, ऐसी सर्विसेज कंपनी इन दिल्ली, उसने सर्च किया और दिल्ली में ही बैठा हुआ है, उसको मेरा एड दिख जाएगा। या फिर वो गुड़गांव में है या फिर एमपी में है, मुंबई में है, वहां से भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसको भी एड दिख जाएगा। सेकंड वाले में क्या है, आपका इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है, बाहर से, तो उसको ऐड नहीं दिखेगा, बट अगर वो लोकेशन में बैठ के सर्च कर रहा है तो उसको ऐड दिखेगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते थे, अभी गूगल ने हटा दिया है, ठीक है। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ, बाहर में भी दिखाना आप चाहते हैं, आप दिल्ली से बाहर, या फिर आप दिल्ली के अंदर ही आप दिखाना चाहते हैं आप उसको, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस वगैरह है, तो आपको इसमें टारगेट नहीं करना अभी इसमें। मोर सेटिंग्स पे जाते हैं, एड रोटेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पर यही सिलेक्ट करना है आपको, बेस्ट प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी को बार बार रोटेट करेगा आपके एड को, ठीक है। शेड्यूल लगा सकते हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट पे जा सकते हैं। कैंपेन यूआरएल यूज कर सकते हैं, जब प्रॉपर हम कैंपेन सेटअप करते हैं तो कैंपेन यूआरएल अभी नहीं करना, आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। कैंपेन यूआरएल में क्या होता है, आपका यूटीएम बिल्डर होता है, ट्रैकिंग टेम्पलेट होता है, जो हम ट्रैक करते हैं यूजर्स की एक्टिविटी को, ठीक है। तो ये पूरा एक अलग टॉपिक है, अगर इस पे मैं क्लास करने स्टार्ट करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा मुझे इसमें बताने में कि कैसे हम ट्रैक करते हैं यूजर्स की एक्टिविटी को, ठीक है, या डेटा को उसके। वो कैंपेन यूआरएल हम लोग यहाँ पर पास करते हैं, ठीक है। और ये आपका अकाउंट लेवल, कैंपेन लेवल, या फिर आपको एड ग्रुप या एड पे भी हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं कि मुझे अगर मैंने कैंपेन में टारगेट किया इसको, तो कैंपेन के अंदर जितने भी एड ग्रुप है या जितने भी एड्स है, सब पे आपका अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो सभी का डेटा ट्रैक करके आपको बताएगा। या फिर आप ऐड या ऐड ग्रुप पे भी आप टारगेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑल डेज, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो ऐड रन करना है वो सभी को यहाँ पर दिखाना है ऐड अपना, ठीक है। सॉरी, मुझे जो ऐड रन करना है यहाँ पर डेली रन करना है, तो मैं यहाँ पर अगर सिलेक्ट करना चाहता हूँ मंडे टू फ्राइडे या जो भी है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे मंडे टू फ्राइडे दिखाना है, सैटरडे संडे दिखाना है मुझे, या किस टाइम पीरियड पे दिखाना है मुझे ऐड अपना, वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है आपका एड ग्रुप, ठीक है। कैंपेन के बाद आपका एड ग्रुप आता है, जहां पर आपको कीवर्ड्स यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं। तो कीवर्ड्स देखिए मैंने यहाँ पर पहले से निकाल कर रखे हुए हैं कुछ कीवर्ड्स आपके, ठीक है। तो आप कीवर्ड प्लानर पे जाइए, कीवर्ड्स आप सर्च करिए, और देखिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर कीवर्ड्स आपने ठीक से नहीं यूज नहीं किए हैं कोई भी, ठीक है, तो फिर आपका जो एड है उससे कोई परफॉर्म ही नहीं करेगा, और करेगा भी तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपके प्रॉपर लीड्स नहीं आएंगी, प्रॉपर ऑडियंस नहीं आएगी, आपके बजट भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कीवर्ड्स, देखिए मैंने जो यूआरएल यूज किया था ऐसी सर्विसेज वाला, तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स इसने निकाल के आपको दे दिए, ठीक है। तो मुझे जो कीवर्ड्स यूज करना है वो ये वाले नहीं करने, ठीक है। मुझे जो कीवर्ड्स यूज करना है वो आपका ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको यूज करना है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने पहले से निकाल कर रखे हुए कीवर्ड प्लान से कि इन सारे कीवर्ड्स को मुझे यूज करना है। तो 4-5 कीवर्ड्स हैं, 5-6 कीवर्ड्स हैं, इनको मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो हम अभी कॉपी करते हैं इन सारे कीवर्ड्स को, ठीक है। तो बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, एंड एसईओ पैकेज इन दिल्ली। तो ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका मैं ऐड रन करूंगा, इन सारे कीवर्ड्स में मेरा ऐड शो होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कीवर्ड जो हम अभी यूज कर रहे हैं इसमें मैच टाइप्स होते हैं, ब्रॉड होता है, फ्रेज होता है, एब्जेक्ट होता है, पहले ब्रॉड मैच मॉडिफायर भी चलता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी जो यूज कर रहे हैं ब्रॉड ही कर रहे हैं। अगर मैं सारे कीवर्ड्स की बात करूँ तो एक थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर मुझे एक्सप्लेन करने में,
ठीक है, क्योंकि सारे ब्रॉड हम लोग यूज नहीं करते, फ्रेज और एग्जैक्ट पे भी जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्योंकि सारे ब्रॉड अगर आप यूज करेंगे तो बजट बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका, तो आप फ्रेज यूज करिए या फिर कुछ कीवर्ड को एग्जैक्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एड्स। तो यहाँ पर आपको एड क्रिएट करना है। यहाँ पर तो आपने कैंपेन क्रिएट किया, कैंपेन के अंदर आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट किया था, आपने बिट सेलेक्ट किया था यहाँ पर, उसके बाद आपने ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट किया था यहाँ पर, उसके बाद आपने ऐड ग्रुप है, ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स आपका, उसके बाद आता है हमारा ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव एक ऐड क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको प्रॉपर आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं एंड प्रॉपर आप ऐसी पंच लाइन या आपको बिल्कुल आई कैची आपको हेडलाइन यूज करनी है इसके अंदर, जिससे क्या हो यूजर्स इस पे आपके ऐड को देखकर क्लिक करें, सीटीआर रेट इंक्रीज हो, आपका जितना सीटीआर इंक्रीज होगा उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका यूआरएल, जो ऑलरेडी हमने कैंपेन क्रिएट करते समय यहाँ पर रख दिया था, यूआरएल यूज किया था हमने, तो ये यूआरएल है हमारा जिस पे लैंडिंग पेज पे जाएगा, ठीक है, यही हमारा लैंडिंग पेज है। एंड उसके बाद आता है पाथ। तो अभी देखिए राइट साइड में आपको एक प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि आपका जो एड है वो किस तरीके का यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो प्रीव्यू में यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो यूआरएल है trionfoservices.com स्लैश, आगे का यूआरएल अभी शो नहीं कर रहा है, तो मैं इसको अभी मोबाइल की जगह डेस्कटॉप में कर देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पाथ दे सकते हैं कि मुझे इस यूआरएल के आगे भी कुछ यूजर्स को दिखाना है, जैसे लाइक मैं नोटपैड पे दिखाता हूँ आपको, ये मेरा एक यूआरएल है एंड इसके आगे मुझे यहाँ पर एक पाथ देना है कि जैसे डॉट कॉम के बाद स्लैश डिजिटल या एसईओ सर्विसेज, ठीक है। तो यूजर को क्या शो होगा, यूजर को जो शो होगा वो डॉट कॉम के बाद एसईओ सर्विसेज शो होगा, उसको मतलब उसके माइंड में ये आएगा कि हाँ ठीक है मैं एसईओ सर्विसेज वाले पेज पे जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो बट जाएगा किस पे, जाएगा उसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होगा जो पेज का यूआरएल आपने यहाँ पर दिया हुआ है इसको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया 15 कैरेक्टर्स की लिमिट इसमें, एसईओ सर्विसेज, ठीक है। तो अभी आपके सामने जो यूआरएल आ रहा है .com trionforservices.com/seo/services, ठीक है। तो यूजर को पूरा यूआरएल शो नहीं हो रहा, यहाँ पर शो हो रहा है इसको .com के बाद एसईओ सर्विसेज, यूजर के माइंड में है कि मैं एसईओ सर्विसेज वाले पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव होता है आपका कि आप इसको जितना अच्छा बनाएंगे उतना ज्यादा वो यूजर्स क्लिक करेगा आपके यूआरएल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जब वो यूआरएल पे चले जाता है या लैंडिंग पेज पे चला जाता है तब उसको फिर ये वाला यूआरएल से मतलब नहीं होता, उसको फिर कंटेंट दिखता है कि आप अपने लैंडिंग पेज पे कंटेंट क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप एक अच्छा से इफेक्टिव रखिए बात। उसके बाद आता है आपका लीड फॉर्म। तो देखो आपको लीड फॉर्म मैंने बताया था कि लीड फॉर्म इसका अपना भी होता है जहाँ पर लीड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर लीड ले सकते हैं, और या फिर आप अपने लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट करा सकते हैं। तो मुझे लैंडिंग पेज पर ही लेकर जाना है यूजर्स को, अपने लीड फॉर्म क्रिएट नहीं करना मुझे यहाँ पर, जैसे फेसबुक में भी अपना लीड फॉर्म होता है लीड जनरेशन में। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले हेडलाइन यूज करनी है, तो मैंने जो यूआरएल यूज किया था उसकी कुछ हेडलाइंस वगैरह उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। मुझे ये वाली हेडलाइन नहीं करना, मुझे पहले से मैंने कुछ हेडलाइंस बना कर रखी हुई है तो उनका ही यूज करना है मुझे। तो फर्स्ट हेडलाइन में मैं यूज करूंगा बेस्ट एसईओ सर्विसेज दिल्ली। सेकंड में आ जाएगा हमारा गारंटेड फर्स्ट पेज रैंकिंग, एंड थर्ड बेस्ट एसईओ सर्विसेज एजेंसी, ठीक है। तो मैंने आपको 3 हेडलाइंस तो यूज करना ही है, बाकी आप मल्टीपल हेडलाइंस यूज कर सकते हैं और इसको और भी ज्यादा आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप हेडलाइंस यूज करेंगे उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज भी होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि इस टाइप से कुछ आपका एड शो होगा, हेडलाइंस आपका बेस्ट एसईओ सर्विस दिल्ली, बेस्ट एसईओ एजेंसी सर्विसेज एजेंसी। मुझे फर्स्ट में क्या रखना है और सेकंड में क्या रखना है, थर्ड में क्या रखनी है, कौन सी हेडलाइन रखनी है, तो वो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे यहाँ पर फर्स्ट में एक पिन पॉइंट आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो शो फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन में मुझे ये दिखाना है एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पर 3 हेडलाइंस है, शो आपकी 2 ही होगी, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रॉपर एक ऐड बन गया अभी। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन, ये हम इसको उठाते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन भी देखिए ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है, जो भी हमने यूआरएल यूज किया था। तो आपको डिस्क्रिप्शन एक अच्छा अट्रैक्टिव सा डिस्क्रिप्शन बनाना है, इसमें भी आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, अपनी यूएसपी वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं आप इसके अंदर।
तो डिस्क्रिप्शन में अभी हम यहाँ से कॉपी करते हैं डिस्क्रिप्शन। 90 कैरेक्टर्स लिमिट है डिस्क्रिप्शन की आपकी, इससे ज्यादा नहीं लेगा वो। ठीक है। हम्म, चलिए मैं इसको हटाता हूँ अभी। तो ये भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ कि फर्स्ट में मुझे ये वाला डिस्क्रिप्शन रखना है, सेकंड में मुझे ये डिस्क्रिप्शन रखना है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है। तो ये अभी आपका एक प्रॉपर ऐड क्रिएट हो गया लीड जनरेशन के लिए। यहाँ पर आप टाइटल, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल तीनों चीजें यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ठीक है। उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डन। तो एक्सटेंशंस वगैरह भी यूज कर सकते हैं आप, साइट लिंक है, कॉल है, बहुत सारे अलग टाइप्स के एक्सटेंशंस होते हैं आपके जो यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, वो भी आपके रिव्यू में जाएंगे और आपका ऐड भी रिव्यू में जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एक ऐड है। ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है या एडिट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। अब आपका पूछता है बजट, कि आपको बजट कितना लगाना है यहाँ पर। ठीक है। तो मुझे जो बजट यूज करना है वो डिपेंड करता है आपकी जो बिट कॉस्ट है, आपकी कीवर्ड की कॉस्टिंग क्या जा रही है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग बजट आपको लगाना है। तो पर डे का जो मुझे बजट यूज करना है वो कितना करना है, तो पर डे का बजट मैं यहाँ पर जैसे सजेशन में दे रहा है, रिकमेंडेड बजट में ये लगा रहा है मुझे यहाँ पर। बट मैं चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बजट लगाता हूँ। तो मैंने 2000 रुपये एक बजट लगाया, ये पर डे जो मुझे स्पेंड करना है 2000 रुपये करना है। अब बिट कॉस्ट आपकी मान लीजिए क्लिक ही आपका 100 रुपये 200 रुपये पर क्लिक जा रहा है, 2000 रुपये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। अगर आपकी कीवर्ड की जो कॉस्ट आ रही है, बिट कॉस्ट आ रही है 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, तो फिर ठीक है, आप 1000 रुपये में ही पूरे दिन बहुत आराम से भी आप चला सकते हैं, 10-20 रुपये का बिट कॉस्ट है तो। ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका जो बिट कॉस्ट है वो कितनी है यहाँ पर। ठीक है। तो मेरी जो कॉस्ट मैंने 80 रुपये लगाया था, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा भी है, 80 रुपये कम नहीं है। तो 2000 रुपये में आराम से चल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी पड़ेगी बजट। ठीक है। नेक्स्ट। उसके बाद आपका ये रिव्यू में जाएगा, कैंपेन पब्लिश हो जाएगा, चेक करेगा आपके एरर्स वगैरह, कोई आपकी जो अभी तक कैंपेन आपने बनाया था उसमें कुछ एरर तो नहीं आ रही। एरर चेक करने के बाद आपका ये पब्लिश हो जाता है। पब्लिश होने के बाद आपका रिव्यू में जाता है, जो चेक करेगा गूगल या गूगल के एल्गोरिथम मशीन लर्निंग पे जाएगा आपका, चेक करती है कि आपके कीवर्ड्स किस टाइप से, हेडिंग्स कैसा है आपका, ऐड क्या बना रहे हैं, आपका यूआरएल कैसा है आपका, ये सारी चीजें यहाँ पर चेक करता है। उसके बाद आपका जो अप्रूव हो जाता है ऐड, और उसके बाद भी चेक करता रहता है बहुत सारी चीजें आपकी। ठीक है। और आप कीवर्ड्स कुछ ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं कुछ भी, तो या चेंजेस करते हैं कीवर्ड्स में, उसके बाद भी वो आपका रिव्यू में जाती है चीजें। ठीक है। हर बार कीवर्ड आपका रिव्यू में जाएगा। तो आई थिंक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक लीड जनरेशन कैंपेन हम चला सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप पीमैक्स कैंपेन पे जा सकते हैं, या सर्च ऐड भी चला सकते हैं, या फिर एक स्टैंडर्ड शॉपिंग ऐड भी रन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये पब्लिश हो जाएगा अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा चेक होने में। ओके। तो अभी कोई एरर नहीं है इस ऐड के अंदर, कैंपेन के अंदर, तो हम इसको भी पब्लिश कर देते हैं और ये हमारा एक पब्लिश हो गया। ठीक है। तो चेक करना है अगर आपको कि आपका कैंपेन कहाँ है, तो हम डायरेक्ट कैंपेन पे जाएंगे दोबारा से। एंड कैंपेन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो कैंपेन हमने टाइम फॉर लीड एड जो हमने क्रिएट किया था वो ये आ रहा है। ठीक है। तो अभी इस पे क्लिक करते हैं कैंपेन के ऊपर, तो ऐड ग्रुप आ जाता है, और हम ऐड ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ऐड ग्रुप में हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि अभी सारे रिव्यू में, और मैंने बताया था ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हैं। तो मैंने बताया अलग अलग टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, बाकी हम लोग क्लास के अंदर प्रॉपर एक बताते भी, क्योंकि ये टाइम लगता है। देखिए कीवर्ड्स अगर हम डिस्कशन करेंगे तो कि हमें कौन सा वाला कीवर्ड को ब्रॉड बनाना है, कौन सा फ्रेज बनाना है, किसको एग्जेक्ट बनाना है आपको कीवर्ड्स को। ठीक है। तो सारे कीवर्ड्स अभी रिव्यू में है, रिव्यू से बाहर निकलेंगे तब आपका ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पर एक ऐड है, अगर हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमने जो ऐड क्रिएट किया था वो हमारा ऐड है, यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। ये तो ये भी रिव्यू में है आपका ऐड। उसके बाद आपको बिलिंग में जाना है, और यहाँ पर एक 500 का बजट एक आपको लगाना है, मिनिमम 500 ही लेता है आपको। ठीक है। तो आप बिलिंग में जाकर आप इसमें 500 रुपए का एक बजट लगा सकते हैं। ठीक है। जब अप्रूव हो जाएगा तो 500 रुपए में से आपका ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक लीड जनरेशन कैंपेन रन कर सकते हैं। एंड आई थिंक जिसका भी जो बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, या पहले से कैंपेन क्रिएट किया होगा, ठीक है,
उसमें कुछ भी इश्यू आता है आपको तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो वी विल हेल्प यू, ठीक है? ओके, थैंक यू। अभी हम क्यू एंड ए सेशन स्टार्ट करेंगे, तो जिसके अंदर आप कुछ भी अभी तक आपने कोई भी कैंपेन रन किया था या कुछ भी इश्यू आ रहा है, आप गूगल एड्स में या लीड जनरेशन कैंपेन के अंदर, जहाँ पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे डायरेक्ट, ठीक है? तो मैसेज कर सकते हैं। ओके, पहले मगनू जा, हाउ मच डज कॉस्ट टू रन एन एड? तो मंगनू, कॉस्ट डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, ठीक है? मैंने आपको बताया कि आपकी एड की कॉस्ट जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करता है आपकी बिड कॉस्ट के ऊपर। मैंने बताया कि जैसे बिड कॉस्ट अगर आपकी जा रही है 10 रुपए 20 रुपए, तो हो सकता है आप 1,000 रुपए में बहुत अच्छे से कैंपेन पूरे दिन में या 500 रुपए में आप चला सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कॉस्ट अगर आपकी बिड की जो कॉस्ट आ रही है, आपका जो कीवर्ड है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है? उसकी 100 रुपए या 150 रुपए जा रही है, तो फिर आपका बजट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपके बिड कॉस्ट के ऊपर कि आप किस टाइप का एड चला रहे हैं और आपकी बजट की सॉरी बिड की कॉस्ट कितनी है, ठीक है? हयात खान है कि आपने मेकअप आर्टिस्ट के लिए लीड जनरेशन कैंपेन रन किया था और सर्वे हर्ट फॉर्म, बट मेरे को कोई लीड्स नहीं आई, ठीक है? तो पहले तो ये आपने कौन सा कैंपेन रन किया था, और कैंपेन जो रन किया था आपने, तो या तो आपने प्रॉपर एड सेटअप नहीं किया होगा, ठीक है? तो सर्च एड अगर आपने रन किया था तो आपका लैंडिंग पेज प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है? कितना क्लिक्स आया तो वो एक बार चेक करना पड़ता है कि कितना क्लिक्स आए थे, आपने कीवर्ड्स कौन से टारगेट किया था। हो सकता है आपने कीवर्ड सही से टारगेट नहीं किया हो, क्लिक्स तो आगे होंगे बट वो जो कीवर्ड्स है ऑडियंस है वो प्रॉपर ना हो, तो उसकी वजह से कोई भी लीड्स नहीं आएगी आपके पास, ठीक है? तो मेन ये मुझे पता करना जरूरी है कि आपने एड कौन सा रन किया था यहाँ पर, ठीक है? रुचि शर्मा, गूगल एड्स के लिए मिनिमम बजट कितना रहता है पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है? देखो, बजट मैंने आपको फिर वही बताया कि बजट देखो, आप 100 रुपए का भी कैंपेन चला सकते हो, आप 100 रुपए का 200 रुपए का बजट लगा कर भी आप कैंपेन चला सकते हैं अगर आप चला रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस टाइप का एड चला रहे हो। सर्च एड रन कर रहे हो, सर्च एड 100 रुपए में नहीं चलेगा, ठीक है? आप डिस्प्ले एड रन कर रहे हैं चल जाएगा, या आपका लाइक वीडियो एड रन कर रहे हैं तो जिसमें व्यू के अकॉर्डिंग चार्ज कर रहे हैं आपसे इम्प्रेशन के, तो चल जाएगा, ठीक है? दीपक, ठीक है, दीपन बजाज, प्राइस वाज शोइंग एंड सेट price was showing and set 2000 by you, okay, and at billing we have selected 500, can you expect? देखो, मैं अभी एक एग्जांपल दिखा रहा था मैं आपको कि मैंने यहाँ पर जो बजट, ठीक है? देखो, कैंपेन में मैंने बजट यहाँ पर 2,000 रुपये लगाया था, है ना? तो ऐसा नहीं है कैंपेन रन नहीं होगा, ठीक है दीपक? अगर मैं 500 रुपये भी लगाता हूँ तो कैंपेन तो रन हो जाएगा, ठीक है? बजट कॉस्ट मैंने 2,000 रुपये बता रहा हूँ कि मेरे पर डे का जो बजट है उतना है यहाँ पर। तो अगर मेरे अकाउंट में सपोज मैंने तो अभी बिलिंग किया ही नहीं, अगर मेरे अकाउंट में 500 रुपये पड़े भी होते तो कैंपेन तो स्टार्ट हो जाता, जैसे अप्रूव होता कैंपेन उस 500 रुपये में चलना स्टार्ट हो जाता। बट मैं गूगल को जो एक बजट बता रहा हूँ 2,000 रुपये का बजट बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो एक्चुअल में जो मुझे करना चाहिए वो 2,000 ही करना चाहिए, बट मैं अभी कैंपेन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि हम 500 रुपये लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है? साइट लिंक कैसे वर्क करते हैं? साइट लिंक देखो, आप अदर पेजेस पे भी लेकर जा सकते हो अपने, ठीक है? आपके जो पेजेस है, आप जैसे लाइक आपकी वेबसाइट में अदर पेजेस भी है, अदर लिंक्स भी हैं, तो आप साइट लिंक बना लीजिए 2 3 या 4 जो भी आप बनाना चाहते हैं, तो उस पे अपना अदर पेजेस का भी लिंक लगा सकते हैं। जैसे हम पीपीसी सर्विसेज वाले पेज पे भी लेके जाना है तो मैं उस पर हेडलाइन डालूंगा पीपीसी सर्विसेज, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और वो वाला पीपीसी वाला जो पेज है वो मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा यूआरएल। तो कोई यूजर जो सर्च कर रहा है तो वो नीचे आपने देखो ऐड के नीचे साइड लिंक्स भी शो होते हैं, तो वहां पर भी आपका लिंक्स वगैरह पे क्लिक करके वो उस अदर पेज पे भी जा सकता है वो, ठीक है? तो साइड लिंक वगैरह इस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है? डिस्प्ले ऐड अलग ही कैंपेन है प्रॉपर, ठीक है? डिस्प्ले अगर ये तो अंदर डाटा जो आप बात कर रहे हैं, डिस्प्ले ऐड कैंपेन आप रन कर सकते हैं, डिस्प्ले ऐड कैंपेन आप एप्स के ऊपर भी रन कर सकते हैं, ठीक है? बट वो प्रॉपर ही अलग कैंपेन है, जहाँ पर आपको कैंपेन जो ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट कर रहे थे वहां पर कैंपेन सिलेक्ट करना पड़ेगा डिस्प्ले ऐड के लिए, ठीक है? तो उसमें अंदर ऑडियंस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, बैनर्स बनाने पड़ेंगे आपको, डिस्प्ले बैनर्स, ठीक है? तो डिस्प्ले कैंपेन प्रॉपर अलग कैंपेन है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं गूगल एड्स में हम सर्च कैंपेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो वो भी आप लीड जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स जो एरर दिखाते हैं हयात खान, वो डिपेंड करता है आप कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है आपका,
ठीक है। तो कभी-कभी आप कीवर्ड जो यूज़ करते हैं उसका कोई सर्च वॉल्यूम ही नहीं होता है, आप अपने एंड से ही आप कुछ भी कीवर्ड डाल देते हैं, उसकी वजह से भी आपका ये इश्यू आता है। ठीक है। गौरव गुप्ता आई वांट टू टॉक, ठीक है। तो गौरव आप आफ्टर वेबिनार आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर आपको शो कर दिया गया है एंड नंबर आपको चैट में ही मिल जाएगा। तो आप टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कुछ भी इश्यू होता है तो आप मुझसे, बहुत सारे लोगों को कुछ भी इश्यू हो रहा है इन फ्यूचर, अगर आपने कोई कैंपेन रन किया एंड उस पे भी कुछ इश्यू आता है तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे हम कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, ठीक, लीड जनरेशन के लिए। एंड अभी तक कुछ भी इश्यू आ रहा है आपको, ऑलरेडी किसी कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो कैंपेन में आपको कुछ भी इश्यू आ रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है, हम व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं बाद में। ओके। हाँ जी, नशा मुक्ति केंद्र ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि सर अगर कंप्यूटर्स बार-बार एड्स पर क्लिक कर रहा है तो उससे उसको कैसे रोक सकते हैं? ठीक है। आईपी वगैरह आप ब्लॉक कर दो उसका, ठीक है, आईपी ब्लॉक कर सकते हैं आप, उसके थ्रू रोक सकते हैं आप उसको। ठीक है। यतेंद्र, आपको मैंने अभी आंसर दिया था डिस्पैच का, ठीक है। या तो आपको भी क्लाइंट के लिए अगर सेटअप करें तो हमारे गूगल एड सेटअप से ही करना होता है क्या? गूगल एड जो क्लाइंट के लिए, आप वो क्लाइंट का अकाउंट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, या बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्लाइंट के लिए आपको सेटअप करना है तो आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट में क्लाइंट का अकाउंट जो है आप लिंक कर दीजिए तो हो जाएगा वो उससे, ठीक है। कोर्स फीस क्या है? हमीद चौहान, ठीक है। तो हमीद, आप टीम से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का। तो आप एक बार टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको कोर्स फीस बता देंगे डिजिटल मार्केटिंग की। एंड आप पीपीसी सिलेक्टेड मॉड्यूल्स में भी जा सकते हैं और कंप्लीट कोर्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो किसी को भी कोर्स फीस वगैरह पूछना है, कोर्स कंप्लीट कोर्स करना है डिजिटल मार्केटिंग का, तो नंबर दिया हुआ है चैट के अंदर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर डायरेक्ट। एंड कुछ भी इशू आ रहा है किसी को भी तो आफ्टर वेबिनार भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से, तो मैं गाइड करूंगा आपको, ठीक है। लैंडिंग पेज के लिए हयात खान, वेबसाइट होना जरूरी है क्या? ठीक है। तो देखो लैंडिंग पेज, हाँ, वेबसाइट लैंडिंग पेज के लिए देखो आप एक डोमेन वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, डोमेन होस्टिंग भी, जहाँ पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके लैंडिंग पेज बना सकते हैं, एचटीएमएल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर गूगल साइट या अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं गूगल के जो फ्री हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हैं लैंडिंग पेज के लिए। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा दीपन बजाज, आफ्टर वेबिनार आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिन लोगों को भी चाहिए सर्टिफिकेट, सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा इसका, ठीक है। शुभम बजाज, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा वर्कशॉप का, वो अब टीम आपको सेंड कर देगी आफ्टर द वेबिनार। कथेश कुमार, हाय सर, डिस्प्ले पाथ इज ओनली फॉर डिस्प्ले परचेज और रिडायरेक्ट यूआरएल पाथ। तो वो डिस्प्ले पाथ आप जो यूज करते हैं ना, जो यूआरएल आप यूज करते हैं उसके बाद डिस्प्ले पाथ आता है, ठीक है। तो डिस्प्ले पाथ केवल चाहे आप जो भी कैंपेन आप चला रहे हैं, सर्च कैंपेन चला रहे हैं आपका, या हेडलाइन में आप यूज करते हैं, ठीक है, तो यूजर्स को केवल सीटीआर रेट इंक्रीज करने के लिए होता है आपका, ठीक है। तो आप सीटीआर रेट इंक्रीज कर सकते हैं आप इससे, डिस्प्ले पाथ से। तो बस ओनली हम दिखाते हैं, बाकी यूजर्स तो जो यूआरएल है आपका, जो पाथ आपने पहले से दिया हुआ है उसी पे रिडायरेक्ट होता है, वो डिस्प्ले पाथ से उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। हाँ, कंप्लीट कोर्स पे अगर जाते हैं तो 100% प्लेसमेंट रहता है, जॉब असिस्टेंस रहता है आपका, ठीक है। तो आप प्लेसमेंट दिया जाएगा आपको 100%, अगर आप 6 मंथ के कोर्स के अंदर जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो संदेश, मैनुअल सीपीसी कैसे डिसाइड करें? तो मैनुअल सीपीसी आप कीवर्ड से चेक करिए कि कीवर्ड्स का क्या चल रहा है सीपीसी, ठीक है, कीवर्ड प्लानर से, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं सीपीसी। यस। तो आई थिंक अभी क्वेश्चंस हम जो भी थे मैंने आंसर दे चुका हूँ अभी सभी के, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर आपके कुछ भी ऑलरेडी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर या कुछ भी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से। एंड उसके बाद हम लोग आपसे, टीम या मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ओके सोनी, नाइस सेशन, थैंक यू सोनी। तो थैंक यू एवरीवन। कुछ लोगों ने ये चीज ना सुनी हो, बट हाँ हो सकता है कि जिन लोगों ने क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग का नाम सुना होगा, इमेजेस भी रैंक करती हैं, ठीक है। अब ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है